اللہ رب العزت قرآن پاک میں واضح اعلان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اے محبوب آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور ہے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالم کو پیدا فرمانے والا ہے، سارے عالم کا رب العالمین ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا جب اعلان کیا تو واضح لفظ میں کہا تمام عالم کا رب، یعنی یہ جو عالم ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جو عالم ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اللہ رب العزت ان عالموں کا بھی رب ہے۔ تو جیسے رب ذوالجلال نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں سارے عالم کا رب ہوں، بلا تمثیل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، اپنے محبوب کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یعنی رب ذوالجلال سارے عالم کا رب اور محبوب سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، اور یہ رب ذوالجلال نے کہا ہے، اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب اگر ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو انسانی لباس میں خالی سمجھنا چاہیں تو یقیناً اس آیت کی تعریف نہیں کر سکتے اور اس آیت کی وضاحت نہیں کر سکتے، کیونکہ رب ذوالجلال نے پورے عالم کے لیے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اگر سارے پیغمبروں کی خوبیوں کو جمع کیا جائے تو تنہا سارے پیغمبروں کی خوبیاں رحمت للعالمین کے اندر ہے، سارے پیغمبروں کے کمالات تنہا پیغمبر اعظم میں ہیں، سارے پیغمبروں کی رحم اور مہربانیاں تنہا پیغمبر اعظم میں ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت کو گویا کی اجاگر کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھو رحمت للعالمین کی رحمت کہاں کہاں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ربوبیت کا اعلان جیسے زمین و آسمان اور ساری کائنات کے اوپر کیا ہے اور جب فرما دیا ہے، ایسے ہی نبی کی رحمت بھی ہے۔ آپ ذرا دیکھو سراقہ بن مالک ایک شخص ہے جس نے سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے راستے کا سفر کر رہے تھے تو یہی سراقہ بن مالک جس نے 100 اونٹ کا لالچ پا کر کے کفار عرب کے سرداروں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیچھا کیا تاکہ پیچھا کر کے پتہ کریں اور موقع کی تلاش میں رہا کہ کب ہم حضور پر حملہ کر دیں، اور یہ لمبے سفر کو طے کرتے کرتے حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضور مدینہ کی طرف چل رہے تھے، سراقہ بن مالک کی نیت کو حضور نے محسوس کر لیا تھا۔ اب جب سراقہ حضور کے قریب ہوتا ہے اور حضور کے قریب ہو کر کے حضور پہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی قریب ہوا تھا کہ حملہ کرے، اس سے پہلے حضور نے اپنے اللہ رب العزت کے فضل سے اور علم غیب کے عطائی علم غیب کی قدرت سے جان لیا تھا کہ سراقہ حملہ کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ وہ ریتیلی زمین سراقہ کو پکڑتی ہے۔ اب سراقہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ پہ قطعی حملہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے گریہ وزاری کی اور معافی تلافی کے لیے عرض کیا تو اللہ کے رسول نے زمین کو پھر حکم دیا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین نے اسے چھوڑ دیا، مگر چند ہی قدم آگے حضور بڑھے تھے، چند ہی
थोड़ा सा सफर करके आप आगे बढ़े कि सुराका की नीयत फिर बदल गई और फिर सुराका हुजूर पे हमला करना चाहा, मगर जब दोबारा सुराका हमला की नीयत से हुजूर के करीब हुआ, हुजूर ने फिर कहा ए जमीन सुराका को पकड़ ले। सुराका बिन मालिक को जमीन ने पकड़ लिया। अब जब सुराका इस खतरनाक हादसे को देखा, खौफ और दहशत का शिकार हो गया और फिर अर्ज करने लगा मुझे माफ कर दें, मैं अब आपका पीछा नहीं करूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत देखो, आपने जमीन को हुक्म दिया ए जमीन सुराका को छोड़ दे। वो रेतीली जमीन दोबारा सुराका को छोड़ देती है। अब जब सुराका छूटा तो कंप रहा था और दहशत में था और उसने एक नजरियाती तौर पर महसूस कर लिया था ये मक्का का मुसाफिर जो मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहा है, अनकरीब ये मक्का को फतह करेगा। उस वक्त इनके मानने वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उसने सोचा क्यों ना अभी मैं अपने आजादी का परवाना और अपने अमान का परवाना लिखा लूं। उसने अर्ज किया ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप मुझे अमान का परवाना दे दें और अगर रास्ते में कोई मुझे मिलेगा तो मैं उसे भी मना कर दूंगा और आपकी तरफ आने ना दूंगा। इस बात का मैं अहद करता हूं। अल्लाह के रसूल ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा सिद्दीक इसे अमान का परवाना लिख दो। अब अमन का परवाना लिख दिया गया, उसे छुटकारे का परवाना लिख दिया गया। सिद्दीक अकबर ने लिखा और उसके हवाले किया और सुराका फिर मक्का की तरफ चला गया। बताना ये है देखो देखो जैसे रब रब्बे जुल जलाल सारी कायनात का रब है, उसी तरह रब ने अपने महबूब को पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। जभी तो जमीन पैगंबर आजम के हुक्म की तामील कर रही थी। हुजूर ने कहा जमीन से छोड़ो तो जमीन ने छोड़ दिया। हुजूर ने कहा पकड़ो तो जमीन ने पकड़ लिया। तो यहां मैं कह सकता हूं जहां जहां खुदा की रुबूबियत का ऐलान है वहां वहां महबूब की रहमत का भी ऐलान किया गया है और जहां जहां खुदा की रुबूबियत है वहां वहां महबूब की रहमत है और महबूब को अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। ये है मेरे आका का मकाम। कुरान उठाओ तो आपको पता चलेगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत के ऊपर मोमिनीन के ऊपर कितने रहम थे। फरमाया गया बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और ए महबूब आप मोमिनीन पर निहायत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाले हैं मोमिनीन पर। और हुजूर के ताल्लुक से कुरान में खुद है गमे उम्मत में हुजूर ने कितना ख्याल उम्मत को किया कि कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा गनितुम। ये जरा देखो उम्मत का फिक्र हुजूर को कितना है, उम्मत पे मेहरबान हुजूर कितने हैं, हुजूर की रहमत कितनी है। हदीस में आता है कयामत के दिन दीगर पैगंबर और उनकी उम्मतें जब कयाम मैदान महशर में गुजरेंगी उस वक्त उम्मतों उन पैगंबरों और उनकी उम्मतों के आगे और दाएं दो नूर होंगे, दो नूर। हर पैगंबर और उनकी उम्मत के साथ सिर्फ दो नूर। पैगंबर गुजरेंगे और उनकी उम्मतें गुजरेंगी, उनके आगे और उनके दाएं दो नूर होंगे। फिर दूसरे पैगंबर गुजरेंगे, उनकी उम्मतें गुजरेंगी, उनके आगे और दाएं सिर्फ दो नूर। मगर मेरे रसूल का सदका उम्मत मोहम्मदिया पर हुजूर की रहमत और हुजूर का फजल उम्मत मोहम्मदिया पर कि कुरान कहता है नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि इन उम्मत मोहम्मदिया के हर फर्द के साथ दो नूर होगा, एक उसके आगे और एक उसके दाएं। देखो दिगर पैगंबर और उम्मतों के साथ सिर्फ दो नूर, मगर उम्मत मोहम्मदिया पर या अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुजूर के सदक़े ये रहमत है कि हर उम्मती के साथ दो दो नूर उसके साथ मैदान महशर में चल रहे होंगे। आप जरा देखो, और इसी
उम्मत को हुजूर के सदक़े, हुजूर के फजल से और रहमत हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे पहले दीदार होगा और हुजूर ही के सदक़े इस उम्मत को सबसे पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये है मोमिनीन पर हुजूर की रहमत कि और पैगंबर और उनकी उम्मतों के साथ सिर्फ 2 नूर, मगर उम्मत मोहम्मदिया के हर बंदे के साथ 2 नूर होंगे, हर बंदे के साथ। इतना बड़ा फजल अल्लाह का सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े है। हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बनाया ही सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत भी रहमत है, जन्नत भी रहमत है। जमीन और आसमान से जो चीजें छुपी है सब के लिए हुजूर को रहमत बनाया गया। तो जहां जहां खुदा की रुबूबियत और खुदा की कुदरत है वहां वहां हुजूर की रहमत और हुजूर का फजल है। या अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। तो हुजूर से मोहब्बत करें। और आओ मैं आपको बताऊं, हुजूर की रहमत सिर्फ मोमिनों पर नहीं, सिर्फ मोमिनों पर नहीं बल्कि काफिरों पर भी है, काफिरों पर। कुरान उठाएं तो आपको पता चलेगा। पहले दौर के कुफ्फार जो पहले अंबिया के दौर में थे उनमें से पैगंबरों के इनकार करने वाले कुफ्फारों पर अजाब आया। मसलन कौम लूत देखो, उसे जमीन के ऊपर उलट पलट दिया गया। कौम समूद को देखो, जलजले की जद में कर दिया गया। कौम आद को देखो, हवा के झोंके का अजाब उस पर मुसल्लत किया गया। और यहीं तक नहीं, बनी इसराइल को देखो, अजाब मुसल्लत करके उन्हें खिंजीर और बंदर बना दिया गया। और मेरे अजीज कौमे नूह को देखो, तूफान में उसे गर्क कर दिया गया। इन कौमों के कुफ्फार के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्तिमाई अजाब लाता रहा, मगर पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो लोग मुसलमान नहीं उन पर भी हुजूर की रहमत देखो। और इनके ऊपर हुजूर की रहमत के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्तिमाई अजाब नाजिल नहीं करता है। आओ कुरान मुबारक देखो, कुफ्फार अरब ने बार बार कहा, ए अल्लाह अगर ये कुरान सच है तो हम पर अजाब क्यों नहीं नाजिल करता, मगर अल्लाह उन पर अजाब नाजिल नहीं करता। ये कुफ्फार अरब मक्का के और मदीना की सरजमीन और ताइफ की सरजमीन पर पैगंबर आजम पे जुल्म और ज्यादती की, पैगंबर आजम की तौहीन किया, मगर उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर इज्तिमाई अजाब नहीं लाया। जबकि पहले पैगंबरों के कुफ्फार पर इज्तिमाई अजाब आ जाया करता था। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए महबूब तुम इनके दरमियान हो इसीलिए इन पर मैं इज्तिमाई अजाब को नाजिल नहीं करता हूं। ये हुजूर का सदका है कि हुजूर उनके दरमियान थे तो उन कुफ्फार अरब के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्तिमाई अजाब को नाजिल नहीं किया। और आज भी हुजूर अपने कब्र मुबारक में अपने जिस्म और रूह के साथ महफूज हैं। उसी का सदका है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे रूए जमीन पर इज्तिमाई अजाब कभी नाजिल नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा कयामत तक के लिए है। ए महबूब तुम इनके दरमियान हो इसलिए इन पर मैं अजाब मुसल्लत नहीं कर सकता। तो हुजूर जब जिस्मानी शक्ल में सामने मौजूद थे तब तो उन पर अजाब नहीं आया जो उस दौर के जालिम थे, और कयामत तक इज्तिमाई अजाब इस उम्मत पर नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल अभी अपने कब्र मुबारक में जिस्म और रूह के साथ मौजूद हैं। वो तो कुदरत का उसूल है कि जमीन के ऊपर आने वाले को जमीन के नीचे ले जाना है। इसी उसूल कुदरत की वजह से मेरे पैगंबर को एक आन के लिए मौत आई, बाकी उनकी जिंदगी तो ऐसी है कि दुनिया के जिंदगी से कई दर्जे बुलंद बाला है। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत। और यहीं तक नहीं, आप हदीस उठाएं तो आपको पता चलेगा, और बच्चियों पर हुजूर की रहमत
कि बच्चियां जिंदा दरगोर होने से बच गईं। औरतों पर हुजूर की रहमत कि औरत यानी माँ की शक्ल में मोमिनीन औरतों के कदमों के नीचे जन्नत की बशारत। और जो और कुफ्फार की औरतें थी जिनको लोग जला दिया करते थे, हुजूर का सदका कि उनको जलाने से महफूज कर दिया गया। और यही तक नहीं बल्कि गुलामों पर हुजूर की रहमत। आप गुलामों पर हुजूर की रहमत की एक मिसाल आपको देता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा को दुनिया जानती है। ज़ैद अपने बाप से बिछड़ गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इनको लाया गया। हुजूर के गुलाम थे ज़ैद, हुजूर के गुलाम। मक्का में हुजूर के साथ सफर करके गए तो खुद बाप ने बेटे को पा लिया और बाप बेटे गले मिल करके खूब रोए। एक लंबे अरसे, लंबे समय तक, लंबे वक्त तक बाप बेटी की जुदाई हुई थी। मगर अचानक मक्का की जमीन पर बाप और बेटा मिलते हैं। बेटा ज़ैद अपने बाप के गले लगा, बाप बेटे खूब रो रहे हैं। और रोने के बाद बाप ने पैगंबर आजम से कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप मेरे बेटे ज़ैद को आजाद कर दें, इसकी जितनी कीमत आप मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। मगर रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो, आपने फरमाया हारिसा मुझे कीमत की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपने बेटे को ले जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा देता हूं, ले जाओ। मगर अपने बेटे से पूछ लो। तो ज़ैद अपने बाप से गले लगे हुए थे। उस वक्त जब नबी ने कहा अपने बेटे से पूछ लो, तो ज़ैद ने मेरे आका के चेहरे को देखा और चेहरे को देख करके उन्हें याद आ गई पुरानी बातें। रहमतुल लिल आलमीन का किरदार, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत, रहमतुल लिल आलमीन का गुफ्तार, रहमतुल लिल आलमीन के हुस्न और जमाल वाले चेहरे का फैज जब उनको याद आता है, वो अपने वालिद से कहते हैं, अब्बू मैं गुलामी की जिंदगी को आजादी के जिंदगी से बेहतर समझता हूं, मैं कतई अपने आका को छोड़ करके आपके साथ जाने को बेहतर नहीं समझता। बाप ने फिर पलट करके कहा, बेटा तू मेरे साथ चल, तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा, तेरे लिए सारे इंतजामात कर दूंगा। मगर बेटे ने कहा, मैं हुजूर के पास रह करके उम्र को गुजार दूंगा, मगर ऐसे आराम को कबूल नहीं कर सकता जो आप कह रहे हैं। फिर बेटा बाप से जुदा हुआ, बाप चला गया और बेटा नबी के पास है और गुलाम है। मेरे आका ने सहाबा के दरमियान खड़े होकर के कहा, ए मेरे सहाबा, आज मैंने अपने इस गुलाम को आजाद कर दिया और इसको अपना मुंह बोलता बेटा, ज़ैद को अपना मुंह बोलता बेटा बना लिया। उस दिन से मेरे आका ने गुलाम को आजाद करके दुनिया को बताया, ये मोहम्मद की रहमत है कि गुलाम को भी अपना मुंह बोलता बेटा बना लिया करता है। और हुजूर की रहमत यहीं तक नहीं बल्कि इससे भी आगे एक वक्त आता है, उसी ज़ैद का एक बेटा है जिसका नाम ओसामा इब्ने ज़ैद। ये ज़ैद गुलाम थे, हुजूर ने आजाद किया, मगर इसी गुलाम का बेटा ओसामा है। हजरत ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक दौर आता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुलाम की अजमत को बयान करते हुए मैदान में आए और मैदान में आकर के कहा, लोगों देखो गुलाम का मकाम, देखो गुलाम का मकाम। पैगंबर आज़म ने कैसा जाहिर किया, एक कंधे पर गुलाम का बेटा है, एक कंधे पर गुलाम का बेटा है और एक कंधे पर बेटी का बेटा है, यानी हुसैन इब्ने अली एक कंधे पर हैं और ओसामा इब्ने ज़ैद एक कंधे पर हैं। दुनिया वाले गवाह हैं, गुलाम के बेटे को कंधे पर बिठाने वाली जात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है। आएगा कोई ऐसी मिसाल? इसीलिए आका ने खुद फरमाया, गुलामों के हुकूक को जाहिर करते हुए फरमाया, जिस कीमत का लिबास तुम पहनते हो उसको भी वैसे उम्दा लिबास पहनाओ, जो खाना तुम खाते हो गुलाम को भी वैसा खाना खिलाओ और गुलाम के ऊपर ज्यादा बोझ मत डालो और उसकी ताकत से ज्यादा उसको जिम्मेदारी मत दिया करो, और अगर जरूरत पड़ जाए देने की तो तुम भी उसके काम में हाथ बटा लिया करो। नबी ने हदीस में भी फरमाया, इरहमू
من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، اللہ رب العزت عرش پر تم پر رحم کرے گا۔ یہ تعلیم رحم دیا نبی نے۔ اور ایک حدیث میں تو ہے فرمایا، حضور نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ دنیا میرے آقا کی رحمت کو نہیں سمجھ سکتی، اور حضور کو بشری لباس میں دیکھ کر کے اپنے جیسا بشر کہنے لگی۔ میرے عزیز یہی تک نہیں، اگر وقت ہوتا ہے تو صرف رحمت کی کئی مثالیں دے سکتا، مگر آؤ غلام کے ساتھ رحمت ہے، مومنین کے ساتھ رحمت ہے، کفار کے ساتھ رحمت ہے، جانوروں کے ساتھ بھی حضور کی رحمت ہے۔ کئی حدیثیں اس پر ہے اور وقت نہیں کہ بیان کیا جائے، بس مفہوم حدیث بتا کر کے حضور نے فرمایا جانور کو مارا نہ کرو، اور اگر کبھی مارنے کی ضرورت آئے تو جانور کے چہرے پہ مت مارا کرو، اور جانور کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالا کرو، اور جانور کو بھوکا پیاسا مت رکھا کرو۔ اور اگر آپ درختوں پر حضور کی رحمت دیکھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا قطعی ہرے بھرے درختوں کو کاٹا مت کرو، اور راستے میں جو درخت لگے ہیں اس کو مت کاٹا کرو، اس لیے کہ مسافرین کے سائے کے لیے وہاں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دیکھو، درخت ہو، جانور ہو، انسان ہو، چرند و پرند ہو، کافر ہو، مومن ہو، سب پر حضور کی رحمت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس رسول کو اللہ رب العزت نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔